Hello dear student, I welcome you all in concrete technology subject and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 4, that is quality control of concrete. In quality control of concrete, this is lecture number 11. Myself Daniel Swami, I am lecturer of Civil Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. And quality control of concrete. Today we will study about waterproofing techniques in construction and waterproofing advantages. Let us discuss about the waterproofing techniques in construction and waterproofing advantage in detail. What is waterproofing? Waterproofing क्या होता है? As I have told you earlier, that waterproofing in a building construction is a process of making a structure water resistant or impervious to the ingress of water. Waterproofing is essential as it prevents the water from penetrating buildings and helping to keep the inner area dry, and it helps to reduce the humidity inside the building, minimize the damage and done minimize the damages done to the furniture and alike. वाटर प्रूफिंग क्या होता है? वाटर प्रूफिंग वही है जो मतलब नॉर्मली एक स्ट्रक्चर को पानी ऑब्जर्व करने से रेसिस्ट करता है और एक स्ट्रक्चर को बचाता है. अगर जो भी स्ट्रक्चर वाटर प्रूफिंग नहीं होगा तो वो उसमें स्ट्रक्चर में नॉर्मली अगर वो वाटर लीक करता है तो उसमें कैंसर फॉर्म हो जाता है. अगर वो क्योंकि आरसीसी को उसमें जंग पैदा कर लेगा, जंग जब पैदा होगा उसमें रस्ट होगा तो वो उसका स्ट्रेंथ को खो देगा. ठीक है. सो वाटर प्रूफिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ए स्ट्रक्चर स्ट्रांग एंड still and stable. So waterproofing is one of the most important part. As you can see here, this is the method used for waterproofing. This is one of the method used for waterproofing. एक मेथड है जो मतलब वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं जिस तरह से. और अगर पानी अगर आपका मतलब बिल्डिंग से चूता है तो वो मतलब अगर नहीं क्यूर होता है तो बिल्डिंग का लाइफ स्पैन जो है घट जाएगा और मतलब वो बीमारी का घर हो जाएगा क्योंकि उसमें डैम्पनेस प्रोवाइड होगा. अगर आप वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हो तो उसमें वो अंदर का सरफेस जो है वो ड्राई रहेगा और वो मतलब फेवरेबल कंडीशन में होगा, वो मतलब रोग बीमारी से बचा के रखेगा. ठीक है. In area that experience high annual rainfall and occasionally flood events, and the water proofing is a must. It is important for a base and foundation to be waterproof, especially in an area where the groundwater table is high. In the case of high water table, water in the soil is likely to export hydrostatic pressure on the basement floor and wall. This can be force the water through the cracks, and which can result in a structural damage along with the moisture and relate the problem which such as mold and mildew and decay. ये नॉर्मली कहाँ होता है कि अगर हमको वाटर प्रूफिंग करना है जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, रेनफॉल एरिया, तो वहाँ पे हमको नॉर्मली वाटर प्रूफिंग ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि उसका बेसमेंट और फाउंडेशन, और अगर हाई वाटर टेबल ग्राउंड वाटर टेबल हाई है तो उस जगह पे अगर हम वाटर प्रूफिंग नहीं करते हैं तो वो मतलब हमारा स्ट्रक्चर को डिफेक्ट करेगा. और इसलिए इन द केस ऑफ हाई वाटर टेबल, वाटर in the soil is likely to export hydrostatic pressure on the basement of floor and wall, and this can force the water through the cracks which can result to a structural damage along with moisture. यहाँ पे भी वही बता रहा है कि अगर मान लेते हैं अगर पानी वहाँ पे अगर वाटर प्रूफिंग एजेंट हम नहीं यूज़ करते हैं तो वो क्रैक से क्या होगा, पानी को मतलब एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो मतलब ऑब्जर्व करके ऊपर आ जाएगा और वो डैम्पनेस प्रोवाइड करेगा, वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा. ठीक है. During monsoon, we all would have come across water seepage in the ceiling and the wall, or a dampness in an aftermath of flood. This is due to poor waterproofing. By waterproofing your house, and you can safeguard your building from damage as well as the thing inside your house from humid and
वाटर एक्सपोजर। आप मतलब क्या है कि मतलब आप देखे होंगे कि मतलब मानसून के सीज़न में वाटर प्रूफिंग अगर आपका बिल्डिंग नहीं है तो बहुत सीपेज होगा, और सीपेज के कारण उस वॉल में डैम्पनेस होगा, सीलिंग में डैम्पनेस होगा। उसका मतलब जब ये डैम्पनेस के कारण अंदर का जो भी जो मतलब टेम्परेचर रहेगा वो डाउन हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, वो मतलब डैम्पनेस होने के कारण अनफेवरेबल कंडीशन अंदर रहेगा। और इससे ये तो आपका हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उसमें डैम्पनेस नॉर्मली हर समय रहता है तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का वो पार्ट को वो डैमेज कर सकता है, तो आपका बिल्डिंग का लाइफ स्पैन जो है वो घट सकता है। इसलिए वी शुड टेक केयर अबाउट दैट, and we should go for waterproofing, as well as if we are applying a paint, we should go for waterproofing paint, so that the building will be taken care, and one cell of the building can be applied on that। एक तरह से आप मतलब जिस तरह से आप बुक को कवर लगाते हो पानी से या कोई से मतलब बचाने के लिए, उसी तरह से आप एक बिल्डिंग को कवर डाल सकते हो बाय पेंटिंग और बाय यूजिंग वाटर प्रूफिंग पेंट, सो दैट योर बिल्डिंग विल नॉट हैव एनी डैम्पनेस। ओके। Advantages of waterproofing: safeguard the structural integrity of building, prevent molds and mildews and decay, prevent the metal from rusting and wooden furniture from decay, prevent the seepage from the ceiling and the wall, prevent dampness inside the building, properties value increases. These are the advantage of waterproofing. अगर आप वाटर प्रूफिंग करते हैं तो आप स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करते हो, मोल्ड्स को, मिल्ड ड्यू को, डीकेस को आप प्रिवेंट करते हो, आप प्रिवेंट करते हो मेटल को रस्ट होने से, लकड़ी का फर्नीचर को आप सड़ने से बचाते हो। आप अगर वाटर प्रूफिंग करते हो तो आपका सीलिंग और वॉल मतलब डैम्पनेस फ्री रहता है, सीपेज नहीं करता है। और अगर आप मतलब वाटर प्रूफिंग करते हो तो डैम्पनेस आपका बिल्डिंग के अंदर नहीं होता है। आप प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो, आप अपना बिल्डिंग का वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो। Property value: unhealthy living area and a weak foundation can be significantly reduce the property's value. Waterproofing increase the resale value of the building, which perhaps one of the biggest advantage. Investor or buyer hardly even consider the house without waterproofing. Similarly, house owner lives in a house with a damp or leaking basement, often fears the cost of waterproofing. जो भी होता है प्रॉपर्टीज़ वैल्यू को, क्या होता है कि मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने वाला है तो वो पहले क्या देखता है कि हाउस जो ख़रीदने वाला है वो हाउस कैसा है, उसमें उसका वीक फाउंडेशन नहीं है, कि वो मतलब सीपेज से प्रॉपरली बचा हुआ है कि नहीं, उसमें वाटर प्रूफिंग मतलब लगा हुआ है कि नहीं। और अगर वाटर प्रूफिंग लगा हुआ है तो आपका मतलब वो रीसेल वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन अगर वाटर प्रूफिंग नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर और जो बायर है वो मतलब वो पहले सोचेगा कि मतलब खरीदेंगे, और अगर बिल्डिंग धंस गया तो वो दिक्कत है। ये सब सोच के मतलब बिल्डिंग को वाटर प्रूफिंग किया जाता है। ठीक है। However, getting the essential exercise done with fetchings a noteworthy rate of return, a waterproof basement increase the utilized square footage in an house, simultaneously ruling out the possibility of loamy and the structure failure. ये क्या होता है कि मतलब अगर प्रॉपर्टीज़ वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर आपका वाटर प्रूफिंग रहेगा तो वो प्रॉपर्टीज़ वैल्यू को बढ़ा देता है, वेयर एज अगर वाटर प्रूफिंग नहीं रहेगा तो वो नोट वर्दी नहीं रहेगा, और वो आपका रेट ऑफ रिटर्न्स भी उतना मैक्सिमम नहीं रहेगा। लेकिन वाटर प्रूफिंग रहेगा तो उसका बेसमेंट जो है वो मतलब वो फुटेज को बढ़ा देगा, और वो पॉसिबल रहेगा कि मतलब उसका फेलुअर नहीं लेगा। लेकिन अगर वाटर प्रूफ नहीं रहता है बेसमेंट तो उसका स्ट्रक्चरल फेलुअर कास्ट हो सकता है, इसलिए आपका रेट जो बिल्डिंग का रेट रहेगा वो वैल्यू गिर जाएगा। वाटर प्रूफिंग मेथड एंड टेक्निक्स: brick bat kova method. This is brick bat kova method is RCC slab something developed cracks which allows for passage
of rainwater. It is therefore important to develop the waterproofing roof slab, and which can be provided leakage-proof environment to the interior of the building. This method requires the roof surface slope to quick drain and seal all the cracks and joints. Flat type roof with a RCC is used in a climate with a moderate to a low rainfall. Kova treatment can be used or carried out directly on the RCC or stone slab. ब्रिक बैट कोवा मेथड इज़ नथिंग बट ये मेथड क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि छत पे लीकेज हो रहा है तो नॉर्मली आप मतलब उसको एक लेयर और ढाल के उसको मतलब आप फिनिश कर दो, नहीं तो आप जिस तरह से सोलिंग बैठता है उस तरह से सोलिंग बैठा के उसके ऊपर नॉर्मली 2 इंची ढाल दो कि मतलब जो भी लीकेज रहे वो मतलब कवर हो जाए, और एक स्लोप को प्रोवाइड करो जिससे मतलब वाटर ड्रेन ऑफ हो जाए. Waterproofing method and techniques. The surface of water roof slab should be cleaned and washed with the water before laying the first course. अगर हमको मतलब ब्रिकोवा करना है, ब्रिक बैट कोवा मेथड अगर करना है तो हमको क्या करना है, सरफेस ऑफ रूफ शुड बी क्लीन्ड एंड वॉश विद वाटर बिफोर लेइंग ए फर्स्ट कोर्स. A fresh celery is prepared with a mix of cement with 1 to 2% of super seal power, that is आर्किलिक बेस्ड आर्सिलेटरी केमिकल. ये जो है जो हम लोग फ्रेश सैलरी मिक्स करते हैं सीमेंट्स के साथ, जो सुपर सील पावर रहता है वो हम मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ 1 से 2% तक, और उसको मतलब अप्लाई करते हैं. द सैलरी इज फर्स्ट मिक्सड ड्राइड एंड देन वाटर इज एडेड अंटिल इट रीचेस टू यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी. वो सैलरी को पहले क्या करते हैं, उसको सूखा में मिक्स करते हैं, फिर वाटर को मिक्स करके उसको मिलाते रहते हैं जब तक वो एक कलर में ना आ जाए, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी में आ जाए. दिस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैलरी इज स्प्रेड ऑन द क्लीन रूफ सरफेस टू क्रिएट ए स्मूथ थिन लेयर. इसके बाद ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सैलरी रहता है वो स्प्रेड कर देते हैं रूफ के ऊपर में, एक स्मूथ थिन लेयर जो प्रोवाइड करता है. ठीक है. Cement sand mortar is prepared by adding 1 to 2% of super seal power in an 1:5 cement sand brick dry method. The 1 part of cement and 5 part of sand, that is 1:5, and then water is added to obtain a plasticity mortar. The cement mortar is spread on the top of the thin slurry layer to obtain a 20 mm thickness of cement mortar layer, and brick bat is inserted in the 20 mm cement mortar layer to create 100 to 150 mm brick bat layer later. तो ये क्या होता है, ब्रिक बैट क्या होता है कि मतलब पहले हम लोग सीमेंट सैंड मोटर जो मिक्स करते हैं उसको उसमें मतलब 1 से 2% तक सुपर सील पाउडर मिक्स करके उसको अप्लाई कर देते हैं. धोने के बाद, छत को धोने के बाद उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड 1:5 लेके उसको मतलब मसाला बनाते हैं, उसके ऊपर ले कर देते हैं वो सैलरी के ऊपर. जब सैलरी के ऊपर ले कर देते हैं उसके बाद ब्रिक बैट जो भी होता है उसको ब्रिक को मतलब उसके ऊपर मतलब सोलिंग लगा देते हैं, जो 20 mm मतलब जो हम सीमेंट और सैंड का जो 20 mm का लेयर दिए हैं उसके ऊपर मतलब वो ब्रिक बैट लगा के उसको 100 से 150 mm ब्रिक बैट लेयर कर देते हैं उसको. The cement sand mortar is then used for grouting and previous laid brick bat layer. All the voids and the joints are filled. Ensure the smooth slope surface over the brick bat layer. तो क्या करते हैं, जो भी सीमेंट सैंड मोटर से उसको मतलब जो भी ग्राउट कर देते हैं और जो भी उसका जॉइंट्स रहता है, वॉइड्स रहता है, उसको हम लोग भर देते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्लोप एकदम प्रॉपर हो जहाँ वो पानी बह जाए. फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लास्टिक सीमेंट सैंड मोटर is feather spread on the grouting bricks bat layer. The grouted surface is allowed to cure for 2 to 3 days to avoid surface cracking. और ग्राउटेड सरफेस को उसको क्यूर करते हैं 2 से 3 दिन तक, क्योंकि उसमें कोई क्रैक ना निकले. Another cement sand mortar is prepared 1 cement and 5 sand part, and with 1:2% of super seal powder.
water is added until the mix is consistent, and 20 thick layer of mortar is spread over the brick bat mortar layer. उसके बाद क्या करते हैं कि जब हम ब्रिक बैट लगाने के बाद उसको फिर से मतलब 2 से 3 दिन सूखने देते हैं. उसके बाद हम लोग फिर से सीमेंट सैंड मोटर बनाते हैं और फिर से 1:2% ऑफ सील पाउडर लेके उसको मिक्स करते हैं जब तक वो एक कंसिस्टेंसी मिक्स प्रोवाइड नहीं करता है. और 20 थिकनेस का लेयर का एक मोटर को स्प्रेड करके ब्रिक बैट मोटर को एक लेयर को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. A trowel is used to finish, and a square marker can be made for a stripping of troweling. This is to prevent the surface cracking due to expansion and contraction. It may reasonable to a temperature changes, and curing is continued to 2 weeks. एक तरह से जिस तरह से प्लास्टर होता है उस तरह से उसके ऊपर मतलब कर देते हैं और ये ट्रावल के थ्रू यूज़ होता है क्योंकि और ये यूज़ होने के कारण और उसके बाद जब उसको हम ऊपर से एक लेयर को मतलब डाल देते हैं तो वो क्या करता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने में उसको बचाता है और टेम्परेचर वेरिएशन में बचाता है. और जब उसको करने के बाद हम लोग इसको 2 वीक के लिए फॉर 2 weeks वी हैव टू क्यूर द थिंग. ओके. Next one is liquid applied waterproofing member. These are the kind of member that comes in the form of liquid and that can be sprayed or brushed onto the surface. By brushing, the liquid forms a monolithic member with no laps and welded or seams. दिस लिक्विड अप्लाइड वाटर प्रूफिंग मेंबर जो है वो क्या होता है कि मतलब उसको वो एक काइंड ऑफ मेंबर होता है. उसको हम लिक्विड फॉर्म में रहता है चाहे हम उसको स्प्रे कर दें जिस तरह से आपको वीडियो को पहले दिखाए थे, चाहे वो स्प्रे कर दे चाहे वो ब्रश से हम मार दें, उसको हम लोग लिक्विड अप्लाइड वाटर प्रूफिंग मेंबर कहते हैं. The summary of this lecture is all about waterproofing mechanism of concrete structure and the type of waterproofing method. We have advanced in construction activities very much, but waterproofing mechanism of the concrete structure is the process of making the object or a structure waterproof or a water resistant so that it cannot be affect the external environment. ये जो है समरी है आपका मतलब जो हम लोग पढ़े हैं क्योंकि वाटर प्रूफिंग है जो मेन एजेंट है जो आपको बिल्डिंग का कॉस्ट को मतलब बढ़ाता है और बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है. अगर वाटर प्रूफिंग नहीं रहेगा तो आपका बिल्डिंग का लाइफ स्पैन घट जाएगा. ठीक है. रेफरेंस आई हैव रेफर्ड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स रितु पब्लिकेशन बुक MS Sethi book. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt you can ask me and clear your doubt. Thank you.